Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is software configuration management. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. Last time, we were discussing about quality of web applications and different level of testing were discussed. We discussed component level testing, and in component level testing we said that different components that perform different functions related to that specific application are tested, and different tests that we may perform, like the equivalence partitioning. And equivalence partitioning is the test that we classify input for the specific object, and different categories are tested for that specific object. And the example that we quoted was postal code. If we want user to enter postal code, different input are possible, like postal address may be incomplete or incorrect, or may be in different format as expected or as desired. So we can test such kind of input classes through equivalence partitioning. And then we discussed about boundary value analysis, and in boundary value analysis we said that we need to test minimum and the maximum number, or the lower and the upper limit of the specific input. And suppose for any input, like we say that the product delivery time, it is like minimum time is 2 days and maximum time is 10 days. So we need to test below 2 and above 10, and also between the range. And we said that we can also test different logical independent logical paths that are called path testing. And if we feel that our functionality, our object is quite complex, so we can test all the independent logical paths. Then we discussed about navigation testing, and in navigation testing we said there are two major types, that is syntax and semantics. And when we talk about the syntax, it is about the appearance, it is about the journal links for the navigation. And links may be divided into three types. The first one is like links to the other pages within the application, and the second one is external links to other applications, and the third one was the anchor. Anchor is like within a specific page you may link, you can create hyperlinks. And when we talk about the semantics, so semantic must be like whatever is intended, whatever we want to achieve. And we talk about the navigation semantic unit, that the way to reach the path and the associated navigation nodes, both are tested. Either we are achieving the intended goals, or our application is leading us towards somewhere else. So we have to test different navigation possibilities, and we discussed different questions that must be answered to achieve the effective navigation testing. And then we discussed about configuration testing. And configuration testing, it is quite important on the both sides, client side and server side. And we said that on client side there are a lot of possible combinations or configurations that user may have. So we cannot test each possible combination or configuration, but still the most likely configurations can be tested. And configuration factors through which we said that the configuration varies are like hardware, like operating system, different type of web browsers. So we have to test
with the most likely configurations. And then we also discuss server-side configuration, and on server side it is somehow not to that level or extent as on the client side, but still variation is possible, and we have to test with the most likely configuration on the server side too. And then we discussed about the security testing, and security is a quite important concern in web applications, and we said that there are different mechanisms or different ways to ensure the security of software, in other words web applications. So the first one is the firewall, and firewall is normally combination of hardware and software. So we test that whatever information packet is coming, that is from the reliable source. And then we said the authentication, and authentication is about the authenticity of the source, and it is also the way or mechanism to test the security. And then encryption, and we encode information or the data. So we also discussed the concept of digital certificates. So digital certificates give us opportunity to secure or to trust the contents or the source. And then finally the authorization, and in authorization we said that the access to the websites or web application must be authorized. Only the authorized users can access the web application. And finally we discussed the performance testing, and in performance testing there are two important type of test. First one is the load testing, and the other one is stress testing. In load testing, we said when number of user increases or number of transaction increases, or the data transmission is increases, and then it is quite possible that the performance of the web application is degraded. So we have to test it, and then load testing leads to stress testing. Stress testing is when we exceed the limit of number of users or number of transactions or data transmission. So what happens? Either our web application just crashes, or it degrades, or its performance degraded in a gentle way. So we have to test it. And today we are going to discuss about software configuration management. So what is all about configuration management? Why we need configuration management? हमने पहले भी डिस्कस किया कि change is the only continuous thing in everyday life, in project life cycle, in software development life cycle. Change is continuous. So we need to address the changes. और जब continuous changes हो रही हैं, we need some solid mechanism to address, manage, control those changes. If we do not properly manage the change, what happens? Definitely, अगर poor change management होगी तो confusion create होगी. Confusion among the stakeholders, confusion among the team members, और फिर again ये जो confusion है ये हमें chaos की तरफ लेके जाएगी. तो change को properly manage करना चाहिए, changes को properly address करना चाहिए, और उसके लिए जो हमारे पास mechanism है, एक umbrella activity है जो कि throughout the product development जो है हमारे साथ रहती है, चलती है, that is software configuration management. Software configuration management को हम ये भी कह सकते हैं कि it is a set of tracking and controlling activities. Change को track करना, control करना, और उससे related जो भी project और product के अंदर changes आ रही हैं, उन सब की जो change management है उसकी management, that is software configuration management. और software configuration management activities जो है वो किस लिए
क्यों डेवलप की जाती हैं, व्हाट आर द रीजंस. सो फर्स्ट वन इज वी नीड टू identify the change, and then we want to control the change, and once it is identified and controlled, definitely we want to ensure that change is being properly implemented. कंट्रोल में तो ये भी हो सकता है कि आपने चेंज आपके पास आई और आपने उसको अप्रूव कर लिया, लेकिन फिर ये देखना है कि क्या उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया. और फिर डेफिनेटली रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म इज जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट. वी नीड टू रिपोर्ट चेंजेस टू द रेलेवेंट आर द इंटरेस्टेड आर कंसर्न स्टेक होल्डर्स, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट देन सॉफ्टवेयर सपोर्ट. सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. आप मेंटेनेंस जब प्रोवाइड करते हैं आफ्टर डिप्लॉयमेंट, जो आपकी सपोर्ट होती है, दोज एक्टिविटीज़ आर अंडर द सॉफ्टवेयर सपोर्ट. लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो इट स्टार्ट्स इन अर्ली फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो चलती रहती है एक्टिविटीज़, और उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं अनटिल अनलेस के प्रोडक्ट जो है आपकी डिस्कार्ड कर दी जाए, उस वक्त डेफिनेटली आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ भी स्टॉप हो जाएंगी. लेकिन जब तक प्रोडक्ट लाइव है, प्रोडक्ट चल रही है, तब तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ भी रहेंगी. बहुत फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू एंड ऑफ द प्रोडक्ट या डिस्कार्ड ऑफ द प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं चेंज के. तो आपके ख्याल में क्या पॉसिबल जो है सोर्स हो सकते हैं, या वी में से कि क्या पॉसिबल ओरिजिन्स हो सकते हैं चेंज के. जी, फर्स्ट वन इज वी मे हैव न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर देयर इज सम चेंज इन द मार्केट, और इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मार्केट की नीड या मार्केट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं. तो ड्यू टू दैट चेंज वी मे इनिशिएट और आवर कस्टमर आवर क्लाइंट मे इनिशिएट द चेंजेस टू द प्रोडक्ट. तो ये एक पहला सोर्स है कि बिजनेस की नीड या मार्केट जो है, मार्केट का चेंज जो है, दैट इज़ द सोर्स टू इनिशिएट द चेंजेस इन योर प्रोडक्ट. और फिर सेकंड सोर्स क्या हो सकता है, स्टेक होल्डर्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं दैट कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. आपका स्टेक होल्डर जो है उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, उसने कुछ डिफरेंट तरह से चीज़ों को जो है मे बी कि टॉप मैनेजमेंट ने पहले डिफरेंट तरह से डिसाइड किया हो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किसी और कंक्लूजन पे आ गए हो, किसी और स्ट्रेटजी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया हो, तो वो भी चेंजेस हो सकती हैं. ये दूसरा सोर्स है. द थर्ड वन इज़ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस हों, चेंजेस इन टर्म ऑफ बिजनेस ग्रोथ और डाउन साइजिंग. हो सकता है कि बिजनेस उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बिजनेस ग्रोथ करता है, या उसका वैसे इन स्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी चेंजेस हो सकती हैं. और बिजनेस की ग्रोथ भी चेंजेस जो है वो वहाँ से इनिशिएट हो सकती हैं, और जो कि एक डिज़ायर्ड सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाउन साइजिंग हो सकती है, कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी चेंजेस इनिशिएट होंगी. एंड इट इज़ द थर्ड सोर्स. और चौथा बड़ा सोर्स जो है चेंजेस का, जो ओरिजिन है, दैट इज़ बजटरी और स्केड्यूल कंस्ट्रेंट्स. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो है, जो ऊपर देखें जो हमने बात की कि बिजनेस ग्रोथ और डाउन साइजिंग की, ये इससे रिलेट करती है बजटरी और स्केजुलिंग कंस्ट्रेंट्स से भी समहाउ. तो बजट के कंस्ट्रेंट्स जो है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको, उन चेंजेस को मैनेज करना है. क्वाइट पॉसिबल के बजट कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि बजट को इंक्रीज़ किया जाए और उसके अंदर बिजनेस की ग्रोथ हुई है और आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं. इसी तरह से स्केजुलिंग के कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं. हो सकता है कि जो ड्यू टाइम है उससे पहले जो है आपके क्लाइंट को एप्लीकेशन, आपकी प्रोडक्ट चाहिए. तो इस तरह के डिफरेंट
कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, और ये सारे ओरिजिन्स हैं जहाँ से मोस्टली चेंज जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो है क्या मेजर जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या मेजर एंटिटीज़ हैं, और उनको फिर बाद में और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं सारे प्रोसेस को, और उसके अंदर डिफरेंट जो कंसिडरेशंस हैं उनको देखते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डील करती है विद इंफॉर्मेशन, जो भी आपका प्रोजेक्ट है ओवरऑल, दैट इज़ इन फैक्ट डिफरेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किस सेंस में हो सकती है, आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आपके सोर्स कोड हैं, या आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ये सारा कुछ क्या है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद सेकंड क्या है कि डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स होती हैं। वर्क प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, और आर्टिफैक्ट्स में देखें जैसे आपने कुछ डिज़ाइन मॉडल बनाया है, अपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए डिफरेंट तरह के आर्टिफैक्ट्स होंगे, तो वो भी क्या है, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। थर्ड वन जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ डेटा, एक्चुअल डेटा, जो कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो प्रोग्राम जिसके साथ डील कर रहे हैं, या एक्सटर्नल टू द प्रोग्राम, जो और डेटा के साथ डील कर रहे हैं विद इन अ प्रोजेक्ट। तो जो मेन जो एंटिटी है दैट इज़ इंफॉर्मेशन, और जब चेंज अकर होती है तो इन्हीं तीन तरह की जो ये डेटा सेट्स हैं या इंफॉर्मेशन है, इसी में अकर होती है। या तो आपके प्रोग्राम में चेंज होगी, या डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो हैं आपके वर्क प्रोडक्ट्स वो चेंज होंगे, या जो एक्चुअल डेटा है वो चेंज होगा। और इसी तरह से हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स उनको हम कहते हैं कि SCI। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जैसे यूएमएल डायग्राम है, या सिंगल डायग्राम, दैट इज़ आल्सो कॉन्फ़िगरेशन आइटम, जिसके अंदर चेंज आ सकती है, और उस चेंज को फिर हमें मैनेज करना है प्रॉपरली। आज का यही हमारा टॉपिक है कि क्या वो एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रोसेस है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, और पूरा एक कंप्लीट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम हो सकता है। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, and it is defined as no matter where you are in the system life cycle, the system will change and the desire to change it will persist throughout the life cycle। कि चेंज एक जो है वो चेंज इज समथिंग कांस्टेंट, अकर होती रहती है, चेंज कंटिन्यूअस है। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट बननी है, जो भी आपकी एक वो पूरी लाइफ साइकिल है, उसके अंदर जो है कंटिन्यूअस चेंजेस आएंगी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अंटिल इवन आफ्टर द डिप्लॉयमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको कैसे हमने मैनेज करना है, इसी को आज हम फर्दर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिनेरियो की, और ये सिनेरियो से क्या मुराद है कि कैसे कौन लोग, कौन स्टेक होल्डर्स हैं जो कि डील कर रहे होते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ। और इसको अगर आप रिकॉल करें पिछले लेक्चर्स को, तो मैंने एक टर्म यूज़ की दैट इज़ चेंज कंट्रोल बोर्ड। तो चेंज कंट्रोल बोर्ड इज़ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और यहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर कौन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। और ये सिनेरियो जो है उसी टीम को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। The first one is project manager. Obviously, project manager is the leader of the project, और उनका काम जो है project manager का is to manage throughout the project, to lead throughout the project, और सारी different जो management की activities हैं या concerns हैं उसको देखना। तो एक important जो interest है project manager का, being a part of this चेंज बोर्ड, कि टाइमली कंप्लीशन होनी चाहिए। जो भी बजटरी आपके जो स्केड्यूल के कॉन्स्टेंट्स हैं
वो जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनके अंदर रहते हुए हम कंप्लीशन चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट की, बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर। जो एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर रोल है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज बेसिकली द लीड और द टीम लीड ऑफ द चेंज बोर्ड और द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। और उनका काम क्या है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का, कि जो भी प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दैट मस्ट बी फॉलोड। तो ये एक की रोल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो कि इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टीम्स के अंदर। दे आर आल्सो somehow part of the configuration management team। और बेसिक उनकी जो टास्क है, जो जॉब है दैट इज दे हैव टू वर्क इफेक्टिवली। जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हो, जिसके अंदर कम से कम एरर का चांस हो और कम से कम उससे चेंज जनरेट हो। और सेकेंडली जो एक और इम्पॉर्टेंट उनका टास्क है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल डेवलपर्स जो है वो काम करते हैं एक्टिवली किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, सो दे मस्ट कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट एफिशिएंटली। उनकी आपस की जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर डिफरेंट टीम और डिफरेंट डेवलपर्स काम करते हैं, तो जब वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर चेंजेस कम होंगी, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। और अगर मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ज़्यादा चेंजेस अकर होंगी। Another important stakeholder that should be normally the part of change control board or configuration management body, that is customer। और customer ने क्या करना होता है, they have to follow the formal procedure for the change request। अगर कोई भी चेंज करनी है कस्टमर ने, उसको चाहिए कि वो उस फॉर्मल प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करे, फॉलो करे। और जब प्रोडक्ट जो है वो डिप्लॉय हो जाती है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिफेक्ट्स, कोई बग्स जो है आकर होते हैं, तो फिर अगेन ये कस्टमर ही का काम होता है कि वो उसको इंडिकेट करे एंड इन्फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क्या की एलिमेंट्स हैं, और इसको 4 डिफरेंट जो है कैटेगरीज में या की एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कंपोनेंट एलिमेंट्स। और कंपोनेंट एलिमेंट्स क्या है, इट इज़ सेट ऑफ टूल्स टू एक्सेस एंड मैनेज कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। जो आपके पास जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स मैंने आपको बताया कि जहाँ जिसमें चेंज अगर हो सकती है और फिर उसको प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। तो वो जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए और प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जो है हमारे पास टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करता हो कि हम प्रॉपरली एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें। सेकेंड की एलिमेंट इज प्रोसेस एलिमेंट्स। तो प्रोसेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, collection of actions and tasks for change management। how to deal with the change जो है उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या डिफरेंट जो है एक्शंस परफॉर्म होने हैं या टास्क, उसको उस प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, और दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड की एलिमेंट कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। ठीक, और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स क्या है, ये भी सेट ऑफ टूल्स हैं। ऐसे आपके पास टूल्स होने चाहिए पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ऑटोमेट कर सकें सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन को फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स। आप उसको या डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको इंटीग्रेट करके और वो कंस्ट्रक्शन आपको दे सकें, वो एक स्पेसिफिक वर्जन आपको प्रोवाइड कर सकें। आगे डिटेल में इस पे डिटेल में बात करते हैं आगे चल के। एंड फोर्थ की एलिमेंट ह्यूमन एलिमेंट्स। और ह्यूमन एलिमेंट से क्या मुराद है कि जो डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स और प्रोसेस हैं, प्रोसेस फीचर्स टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव चेंज
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो भी डिफरेंट प्रोसीजर्स इससे रिलेटेड होने चाहिए कि जिन लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी है, जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सपोर्ट किया जाए डिफरेंट टूल्स के थ्रू और प्रोसेस के थ्रू कि वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सकें, इफ़ेक्टिवली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसलाइन, और बेसलाइन को जब हमने स्टार्ट के जो लेक्चर्स थे जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, तो वहाँ पे इस टर्म को हमने यूज़ किया और हमने बेसलाइन, जैसे हमने कहा कि बेसलाइन स्कोप क्या होता है, तो बेसलाइन स्कोप वाज लाइक द ओरिजिनल स्कोप प्लस द अप्रूव्ड चेंज इन दैट स्कोप, दैट इज कॉल्ड द बेसलाइन स्कोप। जो भी एक अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, अप्रूव्ड जो वर्जन है किसी भी डिफरेंट जो आपके पास पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसलाइन। तो जब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं, जब वो अप्रूव हो जाते हैं, एक आपकी बड़े डेटाबेस का हिस्सा बनते हैं, पार्ट बनते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे, रिपोजिटरी का पार्ट बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसलाइन आइटम्स। और जब एक दफ़ा वो पार्ट बन जाते हैं आपकी प्रोजेक्ट डेटाबेस का, तो उसके बाद फिर आपको एक फॉर्मल प्रोसेस चाहिए होता है कि अगर उसके अंदर कोई चेंज आपने अकोमोडेट करनी है। इस डायग्राम के अंदर देखें, ये पेज नंबर 588 से लिए हमने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच जो बुक है, इसमें देखें कि प्रोजेक्ट डेटाबेस है और प्रोजेक्ट डेटाबेस के अंदर डिफरेंट बेस लाइन, जैसे अभी मैंने कहा ना कि डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, सोर्स कोड है, टेस्ट प्लान्स हैं, ऑपरेशनल सिस्टम, ये सारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, जिनके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। अब एक जो सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, उसको देखें कि उसको हमने प्रोजेक्ट डेटाबेस से उठाया और फिर उसके बाद अब वहाँ पे कुछ हम जो भी चेंज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हमारे कंट्रोल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, किसी टीम ने जो है उसके अंदर चेंज लेके आए, उसको मॉडिफाई किया। तो जब अब एक पहले से आइटम जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेटाबेस, उसके अंदर जो चेंज को अगर अकोमोडेट किया गया है, अब अगेन उसके टेक्निकल रिव्यूज़ होंगे और थ्रू टेक्निकल रिव्यूज़ उसकी फिर अगेन जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम जब अप्रूव करते हैं उसको, उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आइटम को, तो फिर अगेन वो आफ्टर द अप्रूवल, आफ्टर द टेक्निकल रिव्यूज़ एंड ऑल द कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिसेस, हम उसको पार्ट बनाते हैं दोबारा प्रोजेक्ट डेटाबेस का। और ये क्यों ज़रूरी है कि सारे जितने भी आपके डिफरेंट आइटम्स हैं, वो आइटम्स अप टू डेट होने चाहिए और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर क्यों क्या चेंज इनकॉर्पोरेट की गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स की। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स क्या है कि जो डिफरेंट आपके डिफरेंट तरह के जो डेटा है और डिज़ाइन के जो आपके कंसर्न्स हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनको हम कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वही अगेन इन ऑब्जेक्ट्स को हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स भी कह सकते हैं। और इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इस स्लाइड के अंदर देखें कि डेटा स्पेसिफिकेशन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर देखें कि डेटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। और फिर इसको देखें डेटा मॉडल और कंपोनेंट एन, ये दोनों जो है वो इसका पार्ट है जो कर्व एरो के थ्रू दिखा रहे हैं। और ये इसके साथ दूसरा एक नीचे जो ऑब्जेक्ट बना है दैट इज टेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड सोर्स कोड, और ये जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कर्व के साथ दिखाए गए हैं।
और जो इनके बीच में जो हमने डबल साइडेड जो एरो दिखाया है दोनों साइड पे जिसके हेड बने हैं, तो वो उसका मतलब ये है कि वो इंटर रिलेटेड है, और अगर किसी एक में चेंज अगर होती है किसी एक कन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो अफेक्ट कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट को भी। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज अगर हुई है तो वो दूसरा भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है, और कोई उसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर उस चेंज की वजह से नहीं आया, और उसको हमने मेक श्योर करना है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी की, और रिपोजिटरी को इन सिंपल वर्ड्स हम डेटाबेस भी कह सकते हैं। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ़ होंगे, और डेटाबेस क्या है कि डिफरेंट जो रिलेटेड आपके ऑब्जेक्ट्स या डेटा है वो उसको कैसे मैनेज करना है, उसका क्या आपस में रिलेशनशिप है। अभी जैसे पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से डेटाबेस की नोटेशन के अंदर आपको प्रेजेंट की गई। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत हमें है, और क्या उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और इससे पहले कि हम इस अब आज की जो हमारे सिस्टम है, जो आज की हमारे ऑटोमेटेड रिपोजिटरीज हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अर्ली डेज की बात करते हैं, जब वी वर क्वाइट न्यू टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और हमारे पास इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे, ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये कैसे सारा कुछ मैनेज हो रहा होता था। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है वो ये है कि एट दैट टाइम वी वर यूजिंग नॉर्मली द पेपर, ठीक है, और पेपर्स डॉक्यूमेंट होते थे जिनके थ्रू हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो आइटम्स हैं उनको उनके वाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करते थे। और इसी तरह से आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे पंच कार्ड यूज़ होते थे अर्ली डेज ऑफ टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर, तो उस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एफिशिएंट हैं और बड़े स्मार्ट्स हैं वो नहीं होते थे, तो हम स्टोरेज के लिए उन पंच कार्ड्स को यूज़ करते थे या इनपुट और आउटपुट के लिए। तो उनके थ्रू जो है हम क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते थे, और डेफिनेटली उनके थ्रू ये सारा जो प्रोसेस है इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट था। अब जब एक आइटम चेंज होता था तो अब उसके अगेंस्ट जो है जो आपने नया आइटम बनाया, नया वर्जन कुछ भी आपने बनाया, तो डेफिनेटली उसमें चांसेस होते थे कि ज़्यादा एरर्स होंगे। जब आपके पास मैनुअल सिस्टम है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर उससे आप जो डिफरेंट जो रिलेशनशिप है आपस में ऑब्जेक्ट्स का, उसको डिस्क्राइब करना, उसको प्रेजेंट करना, कोई कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसको उस सिंपल जो आप रिलेशनशिप है उसको समहाउ मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे रिलेशनशिप कम्प्लेक्स होते जाएंगे और किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आएगी, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनके अंदर उस चेंज का क्या इफेक्ट होगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। और अगेन उसके अंदर क्योंकि सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास टूल्स नहीं थे, तो जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो की रिस्पॉन्सिबल था इस सारे प्रोसेस के लिए, दैट वाज डेवलपर और द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को खुद से याद रखना होता था बहुत सारी चीज़ें, कि जैसे कौन से अच्छा कंपोनेंट को चेंज किया, कौन से आइटम के अंदर चेंजेस आई हैं, किसको अपडेट किया डॉक्यूमेंट को, किसको नहीं किया। तो ये डेफिनेटली प्रोन टू एरर्स, सिंपल इज दैट। अब हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें रिपोजिटरी को, तो रिपोजिटरी इज सिंपली ए सेट ऑफ मैकेनिज्म एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या मैकेनिज्म्स होंगे, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके थ्रू ये सारी मैनेजमेंट होगी, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी। और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो कंसर्न्स हैं, दैट इज डेटा इंटेग्रिटी, डेटा की इंटेग्रिटी होनी चाहिए, डेटा जो है रिलायबल होना चाहिए, और डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट डेवलपर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं,
और फिर अगेन डेटा की आपस में जो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है दैट इज आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और फिर इसके अंदर जो है वी नीड मेटा मॉडल। मेटा मॉडल जो है व्हाट डज इट मीन कि हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। हमें पहले ये चीज़ डिसाइड करनी होगी, इस चीज़ को मॉडल करना होगा कि इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है। सेकेंड, हाउ डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय टूल्स। डिफरेंट जो टूल्स हैं दैट आर नॉर्मली द पार्ट और द सब कंपोनेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू डेटा एक्सेस कैसे होगी। हाउ डेटा कैन बी व्यूड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जो डिफरेंट तरह का डेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो रिट्रीव करेंगे, वो कैसे वो व्यू करेंगे, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा। हाउ वेल डेटा सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड। जब डिफरेंट जो है लोगों ने उसको एक्सेस करना है तो हमने ये देखना है कि ऑथराइज्ड जो एक्सेस होना चाहिए, जिस टीम या जिस डेवलपर को या जिस स्टेक होल्डर्स को जो है उसकी एक्सेस दी जानी चाहिए, क्या सिर्फ वही एक्सेस कर सके और अनऑथराइज्ड नहीं होनी चाहिए एक्सेस। और इसी तरह से जब मल्टीपल लोग जो है एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही आइटम, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे तो उसकी इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है, क्वेश्चन है when we consider or when we develop or design the metadata for a repository। और फिर how well the existing model can be extended। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, कोई ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपको जो करंट आपका मॉडल है उसको चेंज करना है, हाउ यू कैन एक्सटेंड इट। तो ये सारी कंसिडरेशंस होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिपोजिटरी की कि क्या मेन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है रिपोजिटरी। ये क्या जो डेटाबेस है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमें एक तो ये है कि वो सारी कन्वेंशनल सर्विसेज प्रोवाइड उसको करनी चाहिए, इट मस्ट बी देयर, जो कि मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं। और वही अगेन के डेटा शेयरिंग, डेटा इंटेग्रिटी और ये सारे ऑथराइज्ड एक्सेस, ये सारी सर्विसेज जो कि कन्वेंशनल डेटाबेस के अंदर आपको मिलती हैं। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट सर्विस है दैट इज़ स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, यू वांट टू अचीव प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो रिपोजिटरी है उसको ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसके अंदर देखें क्या कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेट आर डायरेक्टली सपोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शंस। जो भी आपके प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट, वो डायरेक्टली सपोर्ट होने चाहिए उसके अंदर और वो इंटीग्रेट होने चाहिए उस रिपोजिटरी के साथ, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और सेकंड वन इज सपोर्ट स्पेसिफिक रूल्स दैट गवर्न द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फंक्शन एंड डेटा मेंटेन विद इन द रिपोजिटरी। बिल्कुल सही है कि आपको स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन करने होंगे जिनके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन को और जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं रिपोजिटरी के अंदर वो कैसे होगा, उसके लिए सपोर्ट होनी चाहिए। थर्ड वन इज इट प्रोवाइड इंटरफेस टू अदर टूल्स। जैसे मैं भी आपको बताया कि डिफरेंट इसके एलिमेंट्स हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अपने डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं और उनको जो है कैसे जो है रिपोजिटरी के साथ उनकी इंटरफेसिंग, कैसे कम्युनिकेशन होगी, वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फोर्थ वन इज अकोमोडेट स्टोरेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड डेटा ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स एंड वीडियो। टेक्स्ट डेटा को स्टोर करना, मेंटेन करना क्वाइट सिंपल, आल्दो कि जब उसका भी साइज बढ़ जाता है एक सर्टेन लिमिट से तो दैट इज़ आल्सो अ की चैलेंज। लेकिन टेक्स्ट से ज़्यादा जब आपके पास ग्राफिक्स और वीडियो जो है कंटेंट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर रिलेटेड टू ऑडियो एंड वीडियो, उनको कैसे प्रॉपरली जो है आपने स्टोर करना है, क्या मैकेनिज्म होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है। इस स्लाइड के ऊपर देखें, ये जो फिगर है 591 पेज नंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए प्रैक्टिशनर्स अप्रोच से ली गई है और ये हमें रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट रिपोजिटरी कंटेंट्स। इसके अंदर देखें कि बिजनेस कंटेंट्स भी हो सकते हैं और बिजनेस कंटेंट्स के अंदर उसके एग्जांपल देखें कि बिजनेस रूल्स, बिजनेस फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट को देखें तो जो डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, लाइक प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स,
प्रोजेक्ट स्केड्यूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ द project management content that is again the part of that repository. और फिर इसी तरह से मॉडल कंटेंट्स में देखें तो मॉडल कंटेंट के अंदर यूज़ केसेस हैं, एनालिसिस मॉडल हैं, डिज़ाइन मॉडल हैं, टेक्निकल मैट्रिक्स हैं, ये सारे आइटम्स या कंपोनेंट्स या कंटेंट होने चाहिए या हो सकते हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कंटेंट के अंदर वो सोर्स कोड आएगा मेनली, और फिर V&V के कंटेंट के अंदर टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट्स, उसके रिजल्ट्स, क्वालिटी मैट्रिक्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखें डिफरेंट जो आपके प्लान है, लाइक प्रोजेक्ट प्लान, SQA प्लान, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये एक अच्छी रिपोजिटरी होगी, उसके अंदर ये सारे डिफरेंट जो कैटेगरीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं बड़ी ब्रीफली, उनके कंटेंट्स अवेलेबल होने चाहिए या उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, क्या फीचर सेट है जब हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। द फर्स्ट फीचर इज वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या होती है कि जिसको हम इन सिंपल वर्ड्स वर्जन कहते हैं, कि वर्जन हम कहते हैं कि ओके इट इज़ वर्जन 1, तो मे बी के इट इज़ वेरी फर्स्ट वर्जन, और फिर कुछ चेंजेस की कोई भी आइटम हो सकता है। और फिर जैसे बुक की एग्जांपल लें तो बुक के अंदर क्या होता है कि एडिशन 1 कहते हैं उसको। एडिशन 1 के बाद आपको कोई दूसरी जो है कुछ अरसे के बाद उसके कंटेंट चेंज होते हैं, कुछ उसके अंदर अपडेट्स आती हैं, तो एडिशन 2 आ जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में क्या हम टर्म्स यूज़ करते हैं, वर्जन। और जब चेंजेस कुछ होती हैं, कुछ बग्स फिक्स किए जाते हैं, तो अपडेटेड आपको कुछ जो है ना, या तो पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है या उसके डिफरेंट पैचेस फिर आपको मिलते हैं और आप उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर पे वर्जन 0.1, 0.2, तो इस तरह से होता है। तो डिफरेंट वर्जन क्रिएट होते हैं। इवन जब आपकी प्रोडक्ट अभी डिप्लॉय भी नहीं होती, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं, तो डिफरेंट चेंजेस के साथ साथ मल्टीपल वर्जन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका की फीचर ये है कि वो जो डिफरेंट वर्जन्स जो क्रिएट हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टू अकोमोडेट डिफरेंट चेंजेस, दैट मस्ट बी सेव्ड, उनको सेव करना चाहिए। और फिर अगेन इट मस्ट बी एबल टू कंट्रोल वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है उनके डिफरेंट वर्जन्स को जो है वो सेव करना ज़रूरी है। ये एक की फीचर है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। और ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, आपका कोड भी हो सकता है, आपके डिफरेंट कुछ और कंटेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। सेकंड की फीचर इज डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। अब जब मैंने कहा कि डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर डिफरेंट, या हम कहना चाहिए कि कंपोनेंट्स या आइटम्स हैं, और उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप की जो ट्रैकिंग है, वो डिपेंडेंसी है, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन। उस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब एक अगर वो उनका आपस में रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है, तो अगर किसी एक में चेंज अगर होती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अफेक्ट करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे कंपोनेंट को, तो उसको ट्रैक करना दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और फिर अगेन चेंज मैनेजमेंट, जब जब एक चेंज अगर होगी, उस चेंज को प्रॉपरली हैंडल करना, मैनेज करना, दैट इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। थर्ड की फीचर इज रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो जनरेट होते हैं, बनते हैं, और फिर उनकी बेस के ऊपर डिज़ाइन जो है वो, और फिर उनकी बेस के ऊपर डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन मॉडल्स होते हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन होती है, कोड जनरेट होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो बनती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग है कि आप कंस्ट्रक्शन से वापस रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस कर सकें और रिक्वायरमेंट्स से आप डिज़ाइन और कोडिंग के ऊपर जा सकें, इसको इन अदर वर्ड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेसिंग भी कहते हैं। तो ये भी एक की फीचर है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक और की फीचर है
और इसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर ये एक फीचर है, एंड दैट इज यू नीड टू ट्रैक द सीरीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स और प्रोजेक्ट रिलीजेस, जो डिफरेंट टाइम के ऊपर आपकी जो अपने डिफरेंट रिलीजेस की है, अब वो क्या कॉन्फ़िगरेशंस थी, वो स्पेसिफिक हो सकती हैं, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट जो आपके सब सिस्टम्स हो सकते हैं और डिफरेंट आपका प्लेटफॉर्म और डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन सब के जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर, उसको जो है ट्रैक करना, उसको मैनेज करना, उसको सेव करना, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और फिर इसी तरह से एक और फीचर जो होना चाहिए दैट इज़ ऑडिट ट्रेल्स, कि ऑडिट अगर आप उसको असेस करना चाहें तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, एंड इट इज़ इन फैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन, व्हाई, बाय होम चेंजेस आर मेड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को देखें कि सोर्स जो है वो क्या है चेंज का, क्यों वो चेंज जनरेट की गई, किसने चेंज जनरेट की, और ये सारे स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है या एट्रीब्यूट्स इसको कहना चाहिए, ये सारे उस ऑब्जेक्ट का पार्ट होने चाहिए, उसके साथ एसोसिएट होने चाहिए, ताकि जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके थ्रू आप उसको असेस कर सकें, असेसमेंट ऑफ द चेंजेस। और इसी तरह से इसके अंदर ये सारे जो लास्ट पॉइंट है कि रिपोजिटरी ट्रिगर मैकेनिज्म टू इंटर ऑडिट इंफॉर्मेशन फॉर चेंज, कि आपकी जो रिपोजिटरी है उसके अंदर ये सर्विस या ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि आप इस तरह की ऑडिट इंफॉर्मेशन इंटर कर सकें फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, उस ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स दैट कलेक्टिवली डिफाइन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, और फिर टू मैनेज चेंजेस टू वन और मोर ऑफ दीज आइटम्स। पहले तो हमने कलेक्टिवली उसके वो सारे डिफाइन करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, फिर उसके अंदर जो भी एक से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनकी चेंजेस को मैनेज करना है। देन वी नीड टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एन एप्लीकेशन, एंड फाइनली वी हैव टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज मेंटेन्ड एज द कॉन्फ़िगरेशन इवॉल्व्स ओवर टाइम। जब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और इस सारे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, सो वी मे कंसीडर दिस क्वेश्चंस दैट मस्ट बी आंसर अगर हमने इस पूरे प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज ए सॉफ्टवेयर टीम आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक कि आप वो सॉफ्टवेयर टीम जो है कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, वो जो डिफरेंट आइटम्स हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स उनको। और फिर हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द मैनी एग्जिस्टिंग वर्जन्स ऑफ ए प्रोग्राम in a manner that will enable change to be accommodated efficiently। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या मैकेनिज्म है कि वो जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उनको वो कैसे मैनेज कर रही है, कैसे मेक श्योर कर रही है कि जो चेंज है वो प्रॉपरली अकोमोडेट हो रही है, एफिशिएंटली अकोमोडेट हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू कस्टमर, कि बिफोर डिप्लॉयमेंट अगर चेंज आती है तो उसको कैसे जो है एड्रेस किया जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, और आफ्टर डिप्लॉयमेंट अगर चेंज है तो उसको कैसे, क्या मैकेनिज्म है टू कंट्रोल द चेंज। और इसी तरह से हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रूविंग एंड रैंकिंग रिक्वेस्टेड चेंजेस। बिल्कुल सही है कि आपकी जो भी ये सारा प्रोसेस है चेंज मैनेजमेंट का और उसको अप्रूव करने का, उसको प्रायोरिटाइज करने का, इसके लिए की रिस्पॉन्सिबल कौन है। और फिर इसी तरह से हाउ कैन वी इंश्योर दैट चेंजेस हैव बीन मेड प्रॉपरली वंस चेंजेस आर अप्रूव्ड, हाउ वी हैव टू इंश्योर दैट चेंजेस आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। और फिर इसी तरह से व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड टू अप्राइज अदर्स ऑफ चेंजेस दैट आर मेड, कि क्या हमारे पास मैकेनिज्म है, क्या वो कम्युनिकेशन जो है स्कीम है जिसके थ्रू हम जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपडेट कर रहे हैं अबाउट द चेंज।
तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस मोर इफेक्टिव। इस डायग्राम को देखें। अगेन ये फिगर जो है पेज 593 से ली गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच से, और चेंज मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं या डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। चेंज कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं हमारे पास इनर सर्कल के अंदर, द इनर मोस्ट जो सर्कल है, और फिर इसकी बेस के ऊपर इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चेंज ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद चेंज कंट्रोल होती है। चेंज कंट्रोल के बाद जो तीसरा इसके अंदर स्टेप है या लेयर है दैट इज वर्जन कंट्रोल, और फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग होती है, एंड फाइनली द रिपोर्टिंग। और अब हम इसको डिटेल में हर एक स्टेप या इस लेयर को हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट या एक्टिविटीज हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ आइटम्स। जितने भी डिफरेंट आइटम्स हैं हमें उसको जो है कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू टाइटल द ऑब्जेक्ट्स कि क्या डिफरेंट उनके टाइटल्स हैं जिनके साथ उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, जिनको देखा जा सके, और फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज क्यों करना है कि फिर उनको देखना है कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, एंड वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू ऑर्गेनाइज दोज ऑल ऑब्जेक्ट्स। और फिर इसके अंदर दो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड बेसिक ऑब्जेक्ट्स, अदर वन इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। और बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो दैट इज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक जस्ट एक सेक्शन है, सिंगल सेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक जो है सिंपल जो है यूएमएल डायग्राम है, सिंगल यूएमएल डायग्राम, दैट इज बेसिक ऑब्जेक्ट। और जब हम एग्रीगेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ बेसिक एंड क्वाइट पॉसिबल के अदर एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स भी उसका पार्ट हो। और ये बेसिकली इसको यूं भी देखा जा सकता है, इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर अगर हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ पॉइंटर लिस्ट। और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, बेसिक एंड एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल देखें कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन एक ऑब्जेक्ट है, एग्रीगेट ऑब्जेक्ट है दैट कंटेन्स कंपोनेंट एंड मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एंड यूएमएल क्लास डायग्राम एंड तो UML class diagram and the component objects are part of the design specification। और design specification क्या है, aggregate object है। जब हम ऑब्जेक्ट को जो है वो मैनेज करना है, जब ऑब्जेक्ट को हमने डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो क्या उसके डिस्टिंक्ट फीचर होने चाहिए। द फर्स्ट फीचर इज द नेम, और नेम क्या है, सिंपली कैरेक्टर स्ट्रिंग है। और जैसे कि नॉर्मल हमारी लाइफ के अंदर होता है कि ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हैं, हम अनएम्बिगुअस जो है आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, एम्बिगुइटी को हम अवॉइड करते हैं। इस तरह के मीनिंगफुल नेम होते हैं और होने चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से ऑब्जेक्ट के केस में भी यही है, जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से उनको टैग किया जाना चाहिए, उस तरह से उनको लेबल किया जाना चाहिए कि उनकी अनएम्बिगुअस आइडेंटिफिकेशन हो सके। सेकंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर उससे रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल्स हैं, दैट इज लाइक लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स दैट आइडेंटिफाई इट्स टाइप, जो भी वो आइटम है उसकी टाइप, जैसे मॉडल एलिमेंट है, प्रोग्राम है, डेटा है, प्रोजेक्ट। और इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी होना चाहिए कि दैट आइटम जो है इज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर होना चाहिए, और उसका जो भी वर्जन इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और चेंज इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और फिर इसी तरह से लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज
के साथ वो डील कर रहा है ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, प्रोसेस, रेफरेंस्ड आर रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट डील कर रहा है, या कोई स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, इवन जो वेरिएबल्स नेम हैं डिफरेंट, वो सारे क्या है काइंड ऑफ रिसोर्सेज हैं। और एक और फीचर इज दैट इज का रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन बेसिकली आपको इंडिकेशन देता है अबाउट द ऑब्जेक्ट टाइप कि ये बेसिक टाइप का ऑब्जेक्ट है या एग्रीगेट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम उनके रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके जो फॉर्मेट पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आप स्लाइड के ऊपर देखें, इसकी देखिए क्लास डायग्राम पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडल, रिक्वायरमेंट मॉडल इज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसी तरह से जो डिफरेंट जो क्रॉस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप हो सकते हैं, डिफरेंट जो हायरार्की बना सकते हैं आप ऑब्जेक्ट्स की, जैसे इसकी एग्जांपल देखें कि डेटा मॉडल इंटर रिलेटेड डेटा फ्लो मॉडल के, ये दो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में किस तरह से इनका रिलेशनशिप है, आप इसको भी इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें कि डेटा मॉडल इंटर रिलेटेड टेस्ट केस क्लास एम। तो डिफरेंट जो आपके जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट हैं या आपके एग्रीगेट ऑब्जेक्ट हैं, वो किस तरह से उनका आपस में रिलेशनशिप है, इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने लेक्चर जो है वो चेंज मैनेजमेंट से बात स्टार्ट की। चेंज जो है वो अनअवॉइडेबल है, चेंजेस आकर होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिफरेंट जो है तरह की चेंजेस हो सकती हैं और डिफरेंट ओरिजिन हो सकते हैं चेंज के, इसको भी हमने आज डिस्कस किया। तो जब ये सारी चेंजेस जिनको के हम रोक नहीं सकते, जिसको हमने अकोमोडेट करना है समहाउ, तो उसके लिए कोई प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैसे उन चेंजेस को मैनेज किया जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चेंज को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। और फिर हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिनेरियो को डिस्कस किया, या इन अदर वर्ड्स हमने कहा कि चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस को डील कर रहा है, उसके अंदर कौन की स्टेक होल्डर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि ही इज़ द लीडर ऑफ प्रोजेक्ट, ही हैज़ टू लीड एंड मैनेज द प्रोजेक्ट। तो उसका जो बेसिक इंटरेस्ट है दैट इज़ टाइमली कंप्लीशन विद द स्पेसिफाइड और बजटेड अमाउंट और जो भी डिसाइडेड स्कोप है उसके साथ। और फिर इसी तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है जो कि उस प्रोसेस को लीड कर रहा होता है कॉन्फ़िगरेशन के, और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं या डिफरेंट और एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको इफेक्टिवली जो है अपना टास्क करना चाहिए, उनकी जो कम्युनिकेशन है among them that must be efficient। और फिर उसके बाद हमने कहा कि कस्टमर इज़ द आल्सो द की स्टेक होल्डर, और उसकी फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट आनी चाहिए इफ़ ही वांट्स टू अकोमोडेट द चेंज। और फिर इसी तरह से हमने कहा कि अगर आफ्टर डिप्लॉयमेंट चेंज आती है तो कैसे उसने इनिशिएट करना है चेंज को फॉर द बग रेक्टिफिकेशन। और फिर हमने उसके बाद बात की कि क्या की एलिमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के। उसके अंदर हमने कहा कि डिफरेंट कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास टूल्स होते हैं जो कि उस सारे प्रोसेस को उन ऑब्जेक्ट्स को जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। द सेकंड वन इज़ द प्रोसेस, क्या प्रोसीजर्स हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, उसको जो है कैसे अकोमोडेट किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया उस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। और फिर हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स होते हैं, अगेन सेट ऑफ टूल्स जो कि जिनके थ्रू आप सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं।
ह्यूमन एलिमेंट्स इज अगेन द प्रोसीजर्स, टास्क कि कैसे इफेक्टिवली आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी है, क्या उसके लिए आपके पास टूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। और फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपॉजिटरी क्या है। जब स्टार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अर्ली डेज के अंदर हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स नहीं होते थे, इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होते थे, तो हम पेपर्स के थ्रू जो है इसको मैनेज करते थे। और पेपर के थ्रू चेंज को मैनेज करना ये क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क है। और फिर हमने की एलिमेंट्स डिस्कस किए रिपॉजिटरी के, और क्या जो है उसमें की सर्विसेज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने प्रोसेस को इन जनरल डिस्कस किया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, और उसके अंदर हमने 5 डिफरेंट लेयर्स को देखा, जिसमें से हमने पहली जो लेयर थी, जो पहला स्टेप था, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है ऑब्जेक्ट्स को, इसको हमने डिस्कस किया। और उसके अपने जो रिलेशनशिप है उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन की है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।